Yes, good morning, students. Good morning, students of the ninth class. Students, we are revising this chapter number, unit number 1, that is Introduction to the IT and ITES industries. And in our previous video, we learned these two terms. Okay, what do you mean by the information technology and the information technology enabled services? We discussed in our last lecture, that is about, we revised in our last lecture, that is what do you mean by the information technology and what do you mean by the information technology enabled services. And later we discussed about this BPO services की BPO sectors क्या होते हैं, क्या advantage होता है BPO sectors का, how they are increasing the GDP growth rate of the gross domestic product rate of the Indian economy. And we also discussed about this BPM industries in India. IT BPM industries क्या होती है इंडिया में, कि what are the structures, what are the four factors these IT BPM industries are divided, and basically these are divided into three types, that is the MNCs, ISPs and GIC, that is global in-house centers. Now students, till here we revised in our last video or last lecture. Now I am going to revise, that is the second part of your this chapter, that is IT applications. बच्चों, आज हम इस IT applications के बारे में पढ़ेंगे कि what are the various areas or the fields where the information technology and the information technology can be used so that we take the benefits from there. बच्चों, in today I think there is no such area or the fields are present or is present where we are not using or where the person is not using information technology or the information technology tools or the services to enhance the productivity of their business, to enhance the of their communication to their loved ones or to their business partners, to increase the number of customers, to provide the better services, to increase the profits. If you want to listen any kind of music, we use this information technology too. We search that things onto the internet by using our smartphones. हमें कुछ भी रिजर्वेशन करना होता है, रेलवे रिजर्वेशन करना होता है, एयरलाइन रिजर्वेशन करना होता है, या हमें कोई मूवी टिकट बुक करनी होती है, तो बच्चों हम घर बैठे बैठे मूवी टिकट बुक कर लेते हैं. मुझे कुछ शॉपिंग करनी होती है, यदि हमें कुछ शॉपिंग करनी होती है तो हम घर बैठे बैठे ही उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को डिफरेंट कंपनियों से कंपेयर भी कर लेते हैं ऑनलाइन, और प्रोडक्ट को घर बैठे बैठे ही इजीली, इट मीन्स इजीली मंगा भी लेते हैं. कोई सर्विस हमें चाहिए कि घर में, ठीक है, कोई फ्रिज ख़राब हो गया है, मशीन ख़राब हो गई है, तो वी गेट that kind of services also by using the information technology services. It means the information technology, by using the information technology, our life becomes very smart and very easier. Understood, students? So now
Today I am going to tell you about the IT applications. Okay, what do you mean by the first we have to learn about the introductions of the IT applications क्या होती हैं. आपको पता लग गया होगा वैसे अब तक कि IT applications क्या होती हैं, कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और द सर्विसेज को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एडवांटेज ले सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टूल्स का. Now there are so many areas or the fields now I am going to explain according to your book. We can use the information technology in our home and in our everyday life. In also we can use the information technology in the library. We can use also information technology at our workplace. We can use IT information technology in education sector also to get the education, to learn, to give the education. Understood? Online. We can also entertainment by using the information technology. We can also better communicate by using the information technology tools. We can also enhance the business productivity or the efficiency or the effectiveness to reach the more and more number of customers by using this information technology or the tools. We can also use the information technology in science and engineering also for the better simulation. Now next, information technology in banking. Now banks are online, all the services of the banks we can achieve through online. IT and इंश्योरेंस कंपनियां भी बच्चों आजकल जितनी भी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगी, ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराने लग गई है. ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर ऑल्सो. नाउ टूडेज डॉक्टर्स or the in medical science also are using the different kinds of machines to diagnose the disease of the patient. Understood? Now at last the IT in government and the public sector. बच्चों ये तो हमने कुछ ही एडवांटेज देखे हैं अभी इसके. Now but in my opinion there is no any sector or no any field or the area is left. They are not taking the advantage of the information technology or the information technology tools. कि एक चाय वाला भी आज अपनी जो चाय की जो शॉप है उसको भी मोबाइल फ़ोन से मैनेज कर रहा है, कि जिसको भी चाय मंगानी है, ठीक है, वो उसको फ़ोन कर देता है और वो उसका वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ करके ओके क्रेडिट ऐप है, ऐप के थ्रू अपने बिजनेस को क्या कर रहा है, वो छोटे से बिजनेस को मैनेज कर रहा है. So students, now we have to learn one by one. Now first we have to learn about this introduction of the IT applications. Understood? So it means information technology helps to improve the quality of our lives by giving us easy access of every kind of information as well as a large number of products and the services at our home by using the information technology tools. Information technology has transformed the way we live, the way we work, the way we conduct our business and the way we communicate with each other. बच्चों पहले कम्युनिकेशन का केवल एक ही वे था हमारे पास कि हम लेटर लिख के कम्युनिकेट करते थे, चिट्ठी पत्री भेज के. उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए रेडियो आया, फिर रेडियो के बाद में ठीक है फिर हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स आए, बट उससे हम केवल ऑडियो टॉक ही कर पाते थे. फिर उसके बाद बच्चों धीरे धीरे नाउ इन प्रेजेंट डेज we can communicate in a better way, that is emailing services there, video conferencing services there. मीन्स हम घर बैठे बैठे किसी को, ठीक है, कितनी भी डिस्टेंस हो, नो मैटर द डिस्टेंस, वी कैन सी द पर्सन्स ऑल्सो, कि हम फिजिकली पर्सन्स को महसूस भी कर सकते हैं, हमारे सामने उसकी पिक्चर है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. अंडरस्टूड? मीन्स वी कैन कम्युनिकेट इन अ बेटर वे. दैट मीन्स कि means our life is totally changed by using this information technology tools. Means of every aspect of our daily routine or the life has altered with the advent of this information technology and its tools, or the hardware of the software of the information technology. Understood?
अब बच्चों देखो एक एक करके हम इनका एडवांटेज देखते हैं। अब हम आपकी बुक पे रिटर्न हो जाते हैं वापस। नाउ सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इन द होम कंप्यूटिंग, आईटी इन होम कंप्यूटिंग। अब बच्चों देखो होम, भाई घर बैठे बैठे हम आईटी का कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हम एडवांटेज ले रहे हैं। हम घर बैठे बैठे गेम प्ले एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हमारा मूवी भी देख सकते हैं बैठे बैठे इंटरनेट पे। इंटरनेट के ऊपर कुछ भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को ब्राउज कर सकते हैं, अपने अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं, डेली के खर्चे, डेली वेजेस, अंडरस्टूड। ईमेल कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी हॉबीज़ को वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं, पजल गेम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। किसी सीडी और डीवीडी के अंदर ये हमारा कंटेंट है, कार्ड में, साउंड कार्ड के अंदर, तो हम उसको सुन भी सकते हैं आईटी की हेल्प से, ठीक है, और वहाँ प्ले भी कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। ओके, नाउ बच्चों सी आईटी इन आवर होम एंड इन आवर एवरीडे लाइफ। अब जो डेली की जो हमारी चीज़ें हैं, डेली नेसेसिटी की जो हमारी चीज़ें हैं, लाइक माइक्रोवेव ओवन हुआ, हमारा फ्रिज हुआ, या कूलर हुआ, या एसी हुआ, अंडरस्टूड, क्लियर। These are also operating by using the softwares। बच्चों ये जो मशीन्स हैं हमारी, ये क्या कहलाती हैं? These are called the embedded computers कहलाते हैं हमारे। इनमें क्या होती है, इनमें एक प्रोग्रामिंग फिट की कर रखी होती है हमने, इस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इनको ऑपरेट कर पाते हैं, अंडरस्टूड, क्लियर है। तो इट मीन्स आईटी हमारी डेली की लाइफ में भी आईटी हमारा इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है और आईटी। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हाउ what are the some of the ways we can use IT in our daily everyday lives. Listen it very carefully. The first one, see student, what is the first one? That is, we use the online services to pay our utility bills, like the telephone bill, electricity bill, गैस बिल, वाटर बिल, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, प्रीपेड पोस्टपेड, घर बैठे बैठे। वी रीड ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स and stay updated. We watch entertainment programs onto the internet, like movies, playing games, listening music. We can also play the online or offline game by using the mobile phones, smartphones, or the personal computers. We get connected with our family members or the relatives and the friends, even if we are geographically at distant locations, using email, social media, video conferencing, video calling, audio calling, etc. There are so many IT tools or the softwares are available now these days. We can also do the online shopping. We can buy or sell the product, any kind of vegetables, groceries, cosmetics, clothes, medicines, electronic devices like air conditioner, laptops, etc. at our home by using the online, understood. We can book hotels, flights, railway tickets, movie tickets online. We can get any type of information instantly by searching onto the internet, and by using this we are using the search engine like the Yahoo, Google, Bing, so many kind of search engines are available, understood। it means कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स है उसका हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एवरीडे लाइफ के अंदर और हमारे घर की डेली मर्रा की ज़िंदगी में, अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट वन इज IT इन लाइब्रेरी। नाउ सी स्टूडेंट्स, बच्चों पहले लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए एक पर्सन हुआ करता था, उसके पास कंप्यूटर नहीं होता था, ठीक है। तो वो जो ट्रैक रखता था रिकॉर्ड्स का, जो डेटाबेस रखता था, वो किसी ना किसी फिजिकल नोटबुक के अंदर या रजिस्टर के अंदर स्टोर करके रखते थे वो पर्सन, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट एम्प्लॉयज होते थे जो, अंडरस्टूड। अब यदि वो रजिस्टर जो है किसी भी तरह से खो जाए या लॉस्ट हो जाए, तो इट मीन्स द ऑल द इंफॉर्मेशंस आर द गॉन। नाउ today's we can manage all the records, we can track all the record of the libraries by using the library management softwares, by using the computer or the information technology tools, understood। Now the physical library is now going to change
इनटू ई लाइब्रेरी। देखो बच्चों यहाँ पे आपकी जो इमेज दिखी लेफ्ट साइड में जो इमेज है उसमें देखो बच्चों, सी है कि ऑल काइंड्स ऑफ ई लर्निंग मटेरियल्स आर अवेलेबल देयर, यू कैन गो देयर एंड रीड फ्रॉम देयर, ई लर्निंग स्टोर्स आर देयर, अंडरस्टूड, क्लियर। आप वहाँ बैठ के सीख सकते हैं, सारे का सारे टूल्स और जो भी आपको बुक चाहिए सब की सब वहाँ पे अवेलेबल है, क्लियर है, अंडरस्टूड। नाउ आई टी एट योर वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस पे तो हम आई टी को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो चाहे किसी भी टाइप का वर्क प्लेस हो, अंडरस्टूड, चाहे वो एक ऑफिस क्लर्क हो, ठीक है, या कोई अनदर एम्प्लॉय हो, तो बिजनेस की उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए स्पीड और इफ़िशियंसी बिजनेस के अंदर या किसी भी वर्क प्लेस के लिए स्पीड और इफ़िशियंसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और स्पीड और इफ़िशियंसी कब आती है, जब हम उसका टास्क का ऑटोमेशन कर देते हैं। और ऑटोमेशन हम करते हैं किसके थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, और हार्डवेयर के थ्रू ही पॉसिबल है, इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। तो अब वो फैसिलिटी हमें क्या कौन देगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देगा, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज आईटी इन एजुकेशन। अब बच्चों देखो नाउ आज देखो हम आईटी इन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या रोल है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग एंड यू आर लर्निंग, अंडरस्टूड, ठीक है। देयर इज नो नीड टू गो टू स्कूल, you can learn and I can teach at my home also by using this information technology tools, understood, clear है। अब बच्चों देखो टीचर जो है इन टीचिंग के लिए आईटी टूल्स को यूज़ कर सकता है और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अपनी टीचिंग एड में वो क्या कर सकता है, इसको इंक्लूड कर सकता है। जैसे अभी देखो इस इमेज के अंदर, इस फिगर नंबर 1.6 में ये टीचर क्या कर रहा है, स्मार्ट क्लास के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू क्या कर रहा है, आपको कोई वीडियो या इमेज दिखा के आपको किसी टॉपिक के ऊपर या प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा है, और आप साथ साथ बैठ के उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं साथ साथ, अंडरस्टूड। मीन्स यू कैन get the better learning process by using this information technology tools and at the same time, understood. That means ICT in classroom, there are many ways in which the ICT is used for education in the classroom, such as e-learning मटेरियल हम क्लासरूम में सीख सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वीडियो सिखा सकते हैं, इमेज और वीडियो के थ्रू सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिकेशंस ऑफ द इमेज, लेटर्स एंड द डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल गेम्स के थ्रू हम सिखा सकते हैं, किसी सीडी या वीडियो के अंदर डीवीडी के अंदर कंटेंट है तो उनको रिप्रेजेंट करके हम सिखा सकते हैं, इंटरनेट के पे कोई कंटेंट है तो वो दिखा के हम यहाँ बच्चों को सिखा सकते हैं, अंडरस्टूड। नाउ बाय यूजिंग दिस ऑनलाइन टूल्स you can get education anywhere anytime. This is the maximum, this is the most benefit of this information technology tool in the education. Means you can get the education, means जब हमारे मन में आए तब हम पढ़ें, ठीक है, तब जब हमारा मन किया किसी भी प्लेस से बैठ के हम पढ़ सकते हैं। यही नहीं है, ठीक है, कि मैं किसी रूम के अंदर बैठ के पढ़ूँ, मैं छत पे जाके बैठ के पढ़ सकता हूँ, किसी भी प्लेस पे जाके बैठ के पढ़ सकते हैं, अंडरस्टूड, ओके। यस बच्चों, टीचिंग जैसे कि मैंने कहा भी आपको, टीचिंग एड्स टीचर यूज़ कर सकता है। अब टीचिंग एड में वो पिक्चर यूज़ करे, एनिमेशन करे, प्रेजेंटेशन यूज़ करे, कोई वीडियो यूज़ करे, अंडरस्टूड, स्मार्ट बोर्ड यूज़ करे, नो प्रॉब्लम। मेक द लेसन इंटरेस्टिंग यूजिंग द प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइज लेसन यूजिंग द कंप्यूटर, ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट। नाउ बच्चों नेक्स्ट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये बच्चों ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू जो स्कूल्स हैं, अंडरस्टूड, आजकल क्या कर रही है, आजकल जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, आजकल जो कंट्रीज़ हैं वो अपने स्कूल्स को मैनेज करने के लिए उनको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट और टीचर पहले उस सॉफ्टवेयर पे क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, ठीक है, उसकी वेबसाइट पे जाके उस पर रजिस्टर करेंगे अपने आप को, और रजिस्टर करने के बाद, ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी सीखने के लिए और सिखाने के लिए। और उस सीखने और सिखाने को हम किसी भी समय कर सकते हैं, एनीवेयर और एनी प्लेस, अंडरस्टूड, कि स्टूडेंट अपनी क्वेरी को पूछ सकता है, वहाँ पे रिप्लाई भी फाइंड कर सकता है, टीचर रिप्लाई कर सकता है, कमेंट है, कमेंट का डिस्कशन फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल होगा, एक्टिविटीज़ भी होती है वहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट वीडियो के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकता है उन एक्टिविटीज़ में,
और पेरेंट्स घर बैठे बैठे अपने बच्चे की प्रोग्रेस को रिपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे। नाउ IT इन एंटरटेनमेंट, बच्चों ये आपको पता ही है, एंटरटेनमेंट तो हम कर ही सकते हैं घर बैठे बैठे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स के थ्रू, कि हम बैठे बैठे घर पे मूवी देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू, सब गेम प्ले कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन गेम प्ले कर सकते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर, म्यूजिक सुन सकते हैं। ओके, नाउ IT इन कम्युनिकेशन, बच्चों कम्युनिकेशन को तो बहुत ही आसान और बहुत ही सुगम बना दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स ने। कैसे? पहले भाई हम कम्युनिकेट किसके थ्रू, चिट्ठी के थ्रू करते थे, लेटर के थ्रू करते थे, ठीक है, हमें ना तो पता होता था कि ये मेरा लेटर पहुंचा है नहीं पहुंचा है। नाउ आज हम ईमेल है, हमारे पास फैसिलिटी है, ठीक है, हम ऑडियो चैट भी कर सकते हैं, वीडियो चैट भी कर सकते हैं, पर्सन को फिजिकली भी देख सकते हैं, पर्सन को फिजिकली देख सकते हैं कि वो पर्सन क्या कर रहा है, क्या हमें बता रहा है, क्या नहीं कर रहा है वो। अंडरस्टूड, क्लियर, बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल। नाउ IT इन बिजनेस, अब बच्चों बिजनेस के लिए तो IT का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो IT का बिजनेस में कैसे, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, नंबर ऑफ कस्टमर को इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बनाने के लिए, बिजनेस को इफेक्टिव बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज़ करते हैं आजकल बिजनेस। और किसके थ्रू करते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स द ई-कॉमर्स विच इंक्लूड मार्केटिंग, प्रोडक्ट ब्राउजिंग, शॉपिंग एंड द प्रोसेसिंग ऑर्डर। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल है हमारे पास। ई कॉमर्स क्या होता है? बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट एंड एनी काइंड ऑफ सर्विसेज ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड द ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स के थ्रू कोई भी बिजनेस अपने आप को ग्लोबल कर सकता है, अपने आप को ग्लोबलाइजेशन कर सकता है। एक बिजनेस जो है एक एरिया में चल रहा था, अब भाई अब ऑनलाइन करके हमने बिजनेस को क्या कर दिया? वर्ल्ड वाइड कर दिया। इट मीन्स नंबर ऑफ मोर कस्टमर बढ़ गए हमारे पास, हमने अपने एरिया बढ़ा दिया हमारे बिजनेस का, वर्ल्ड वाइड कर दिया, तो कस्टमर भी बढ़ेंगे, आपके प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट भी आएगा, क्योंकि फीडबैक्स आएंगे, उससे आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव भी करोगे। अंडरस्टूड दिस थिंग, क्लियर it? Or business communications through emails, video conferencing and the mobile enable people to work from anywhere. This is also the benefits of the IT. Documents can be shared instantly and the decisions can also be taken quickly by using the information technology tools. Understood? Yes बच्चों, now listen next. बच्चों देखो, information technology in science and engineering. Scientists and the engineers are uses the computers for performing the complex scientific operations or the calculation. Computer aided designing, CAD, and computer aided manufacturing applications are used for drawing, designing and for simulating and testing the designs. अब बच्चों CAD और CAM क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की सेम टाइप की सिमेट्रिकल ज्योमेट्री या शेप्स हमें क्रिएट करनी है और इतने नंबर ऑफ टाइम में हमें क्रिएट करनी है, तो हम मशीन्स के थ्रू ही बच्चों, आजकल जो कंपनियां हैं ना, वो मशीन के थ्रू ही क्या करती हैं? प्रोडक्ट को क्या करती हैं? मैन्युफैक्चर करती हैं। जैसे हमने देखा होगा कि जो पेप्सी की जो बोटल्स होती हैं या कोई भी प्रोडक्ट ले लें, उन सबकी जो सिमेट्री होती है सेम होती है ना, लगभग सेम ही होती है। अब सेम सिमेट्री के प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? क्योंकि मशीन्स के थ्रू बनाते हैं हम। उन मशीन्स में क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क करती हैं वो मशीनें, कि हम उस सॉफ्टवेयर में जितना डाटा फीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी सिमेट्री और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे। अंडरस्टूड, क्लियर है? तो इट मीन्स IT, साइंस और इंजीनियरिंग, तो इसी को हम कहते हैं CAD और CAM, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अंडरस्टूड। हम पहले उस प्रोडक्ट को मतलब कि लॉन्च करने से पहले हम उसकी 3D विजुअलाइजेशन भी देख सकते हैं बाय द ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस लाइक रॉकेट लॉन्चिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, रॉकेट लॉन्चिंग, एयरप्लेन सिमुलेशन, मिसाइल लॉन्चिंग, दीज आर नॉट पॉसिबल विदाउट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और द कंप्यूटर्स। ना बच्चों IT इन बैंकिंग तो आपको पता ही है कि बैंक जो है, बैंकिंग की जितनी भी सारी ऑपरेशंस और द प्रोसेस है, उनको हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वी कैन डिपॉजिट, विड्रॉ, वी कैन चेक द बैलेंस, वी कैन check the mini statements at our home by using the app in the mobile phones or by using the online accounts. And this means we can perform each and every kind of operations of the banking
by using the information technology. Now IT and insurance. Insurance companies keep all the records up to date with the help of the computer database. Producers for the continuation of policies, starting date, date of next installment, maturity date, interest dues, survivors benefits and the bonus are declared by using the computers in insurance companies. Many online policies are also available which can be purchased by using the websites of the insurance companies. मीन्स इंश्योरेंस जो कंपनी है वो क्या चाहती है भाई, आजकल जो है अपने कस्टमर्स को सब इजी फैसिलिटी देना चाहते हैं कि वो घर बैठे बैठे भी अपनी किस्त का भुगतान कर दें। अंडरस्टूड। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नीड है, डेटाबेस स्टोर करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए। आईटी इन मार्केटिंग। बच्चों कोई भी बिजनेस है अपनी मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट कर सकता है अपने प्रोडक्ट और सर्विस का, ठीक है, ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, कि वो अपने ग्राफिक्स और आर्ट को डिज़ाइन करे और जितने भी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उन सब पे क्या कर दे, वेबसाइट्स पे अपने अपने, ठीक है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर दे। और ये सब पॉसिबल है किसके थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। आईटी इन हेल्थ केयर। बच्चों आजकल जो हमारा मेडिकल जो डिपार्टमेंट है वो भी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए पेशेंट की डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स यूज़ करता है। उन मशीन्स में क्या होती है, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि वो मशीन भी कभी डेटा को, उन्हीं डेटा को रीड करेगी जो हमने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उनको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इट मीन्स द डॉक्टर्स आर यूजिंग these kind of machine, these IT enabled machine for diagnose the disease of the patient. The computerized machines are used for ECG, EEG, ultrasound, CT scan, MRI. These all technologies are used by the information technology. Now see uses of ICT in diagnosis. अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे CAT, कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी मशीन के, इसको हम बोलते हैं CAT। क्या करती है बच्चों, जो ये मशीन क्या करती है, 3 डायमेंशनल जो इमेज है, हमारी जो बॉडी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ना, उनकी 3 डायमेंशनल पिक्चर क्रिएट करती है जिससे कि डायग्नोस करने में डिजीज़ को हेल्पफुल होता है। MRI क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स। अब ये मशीन क्या करती है, MRI machines are used to give the digital impression of the internal organs of the body by using the strong magnetic fields and the radio waves. The digital images are very helpful in the detection and in deciding the treatment of the disease. So important, MRI important, understood। now बच्चों देखो ECG मशीन क्या करती है, ये हमारी हार्ट बीट को मॉनिटर करती है भाई, हार्ट बीट को मॉनिटर करती है, अंडरस्टूड, क्लियर। जिससे कि when the heart pumps blood to the different parts of the body, some electrical pulses are produced। इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस को रीड करने के काम आती है आपकी ECG मशीन। अब है कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन। अब ये कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन क्या होती है भाई बच्चों, जो हमारा हार्ट है, हार्ट की साइकोलॉजी को डिस्प्ले करने के लिए, उसकी मूवमेंट को डिस्प्ले करने के लिए ये CSM मशीन को हम यूज़ करते हैं, अंडरस्टूड। Through this machine, it is possible to diagnose the problem of the heart, such as thinning of veins, and then recommended treatment. Understood? Now, EEG machine क्या काम करती है बच्चों देखो, electroencephalography machine. This machine is used to record the activities of the brain. Brain की activities को record करने, brain related जितनी भी सारी प्रॉब्लम है ना, हम इसके थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसके बाद ब्लड शुगर की मशीन है, ब्लड शुगर रिपोर्ट को जांच करने के लिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर मशीन के थ्रू हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं बच्चों, अंडरस्टूड, कि लो है या हाई है। नाउ IT इन द इट मीन्स कि आजकल जो मेडिकल साइंस है वो किस पे डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंडेंट ऑन टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंडरस्टूड। अब बच्चों देखो ये कोरोना चल रहा है तो कोरोना के लिए भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मशीन का ही क्या किया जा रहा है, उसके ऊपर ही काम किया जा रहा है कि जैसे जल्द से जल्द उसका डायग्नोस होके उसको ट्रीटमेंट हम कर सकें, अंडरस्टूड। तो IT इज़ वेरी हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग द डिजीज ऑफ द पेशेंट वेरी क्विकली एंड फास्टली। नाउ IT इन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सर्विसेज। IT इन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सर्विसेज। अब बच्चों देखो जो हमारी गवर्नमेंट और जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है बच्चों, जो कि एवरी सिटीजन के लिए होती है और सबके लिए ही होती है, वो सब और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब बहुत सारे पीपल्स को तो उनके बारे में पता भी नहीं होता है कि वो कैसे उनके बेनिफिट ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपनी जितनी भी सारी सर्विसेज हैं उनको क्या कर दिया,
ऑनलाइन कर दिया उन सब सर्विसेज को, और ठीक है, सो दैट एवरी सिटीजन कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट सर्विसेज। अंडरस्टूड। तो इन्हीं किसी को बोलते हैं हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। अंडरस्टूड। डिजिटल इंडिया एंड द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs as well as the international government agencies uses information technology applications ICT applications to communicate and provide the various services to the people and is called as the e-governance. These are the various official websites or the web portal of the government of India for e-governance. It means जैसे बच्चों हमें अपना पैन कार्ड बनवाना है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाना है, अंडरस्टूड, क्लियर। आधार कार्ड हमें कुछ चेंज करवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, या पासपोर्ट बनवाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, नल का बिल पे करना है, वाटर बिल पे करने हैं, अंडरस्टूड। तो वी कैन डू बाय यूजिंग द वेबसाइट्स ऑफ आवर ई गवर्नमेंट वेबसाइट्स, अंडरस्टूड। सो बच्चों ये आपका लेसन फिनिश हो गया है, तो सो प्लीज़ लर्न। आप ये सब कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना। आई विल सेंड यू सम assignment questions. If you feel any problem you can ask me, understood? I hope you are well and good, so keep watching, keep learning. Thank you so much students.